हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 5 का लेसन नंबर 5 फन विथ लैंग्वेज करेंगे। इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। पार्ट 1 में हम रीडिंग, मीनिंग और इसकी ओरल स्किल्स देखेंगे और पार्ट 2 में हम एक्सरसाइजेस करेंगे और कुछ और भी इंफॉर्मेशन उसमें दी है जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फन विथ लैंग्वेज। फन का मतलब होता है मजा, आनंद। और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। इसका मतलब निकलता है भाषा का आनंद लेना या भाषा के साथ खेलना, भाषा का मजा लेना। डू यू थिंक द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश का ग्रामर कठिन है? इज देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इट? क्या क्या कोई रोचक तरीका है इसको सीखने का? तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है जो एक स्कूल का प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान, जहाँ पे से क्लास 5 के जो बच्चे हैं वो सब आपस में मिलजुल रहे हैं। ये लेसन बाकी लेसन की तरह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं और उसके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो ये जो लेसन है ये कॉन्वर्सेशन है। 3-4 फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में आपस की बातचीत को यहाँ पे लेसन की तरह दिया हुआ है। ये बाकी इससे पहले जो हमने लेसन किए थे उसके जैसा नहीं है, जहाँ पे सेंटेंसेस लिखे थे कहानी की तरह। यहाँ पे ये जैसे नाम लिखा है उसके सामने एक सेंटेंस लिखा है, फिर दूसरा नाम लिखा है उसके सामने एक सेंटेंस लिखा है। इसका मतलब ये है, जैसे ये अजय, अजय के सामने जो सेंटेंस लिखा है वो अजय ने कहा। लीला के सामने जो सेंटेंस लिखा है वो लीला ने कहा। तो इस तरह से सबके नाम दिए हैं। आगे चल के और भी नाम है जैसे नफीस, नेहा, उनके सामने जो सेंटेंसेस दिए हैं वो उन्होंने कहे हैं। जैसे नेहा ने ये सेंटेंस कहा, नफीस ने ये और अजय ने ये। तो इस तरह से ये एक दूसरे की आपस में बातचीत है। मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी आप इसको ध्यान से सुनिए कि कैसे कॉन्वर्सेशन, जो आपस की बातचीत है, उसको आपस में कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जाता है और जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो हमारी टोन किस तरह से होनी चाहिए। अ प्लेग्राउंड वेयर सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट। ये एक प्लेग्राउंड है जहां सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 के। अजय, हेलो फ्रेंड्स, कम हियर, I have something very interesting to share with you. Leela, what's that? Is it something in English? You had a period of English just before the recess. Ajay, yes, it is something about names. Leela, Nafis, Neha, and all of you, come here please. Ajay will tell us something about names. All friends gather around Ajay. Ajay, to Leela. What's the name of your younger brother? Leela. Rohit. Why are you asking this? Ajay. It is because I want to tell you something about names. Leela. What's that? Ajay. Your brother's name is Rohit, isn't it? Leela. Yes, it is. Ajay. Now listen carefully. Rohit is a name and a name is a noun. Leela. You mean to say that the name of any person such as Gopal, John, and Bhavna can be termed as a noun? Ajay. Of course. Nafis. Ajay, can the names of things and places be termed as noun?
Ajay. Yes. Neha. What about names of birds, animals, buses, cars, trains, stars, the sun, and the moon? Ajay. All the things around us which are named by man for their recognition are nouns. Friends, it's really very interesting. Ajay, please give me some examples of nouns which are names of persons, places, and things. Leela, you begin with names of persons. Leela, Mohan, Salim, Madhuri, Tom, and Suresh are the names of persons. They are proper nouns. Ajay, yes, Neha. Give some examples of places. Neha, Bhopal, Burhanpur, Tawanagar, Delhi, and Mumbai are the names of places. They too are proper nouns. Ajay, Nafis, give some examples of things, please. Nafis, train, bus, table, chair, pen, and pencil are names of things. They are common nouns. Ajay, Tom, give some examples of birds and animals, please. Tom, parrot, sparrow, crow, cuckoo, peacock, cow, goat, sheep, elephant, and tiger, etc. are the names of birds and animals. They too are common nouns. Ajay, well, friends, you all have given good examples. Now let's define a noun in a sentence. Leela, a noun is a naming word. Nafis, a name is a noun. Neha, all the naming words are nouns. Ajay's teacher, Mr. Singh, happened to pass by. He stops there. Mr. Singh, well, children, what are you doing? Ajay, sir, we are discussing about nouns. Leela, sir, Ajay told us that all the naming words are nouns. Nafis, is it correct, sir? Mr. Singh, it is absolutely correct. I am happy you are doing something very good. Carry it on. Mr. Singh goes away. Leela, Nafis, Neha, and friends. Thank you, Ajay. We have enjoyed the discussion. It was really very interesting. All friends leave to their classes. तो देखा आपने कैसे इसको रीड करते हैं? मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सही तरीके से सुना सकूं कि किस तरह से आपस में बातचीत की जाती है। चलिए अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। अजय, हेलो फ्रेंड्स, कम हियर, आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू। अजय कहता है कि सभी दोस्तों को पहले तो ग्रीट करता है, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ आओ, मेरे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है आपको बताने के लिए। लीला कहती है क्या है? व्हाट्स दैट? क्या वो इंग्लिश में है? इज इट समथिंग इन इंग्लिश? यू हैड अ पीरियड ऑफ इंग्लिश जस्ट बिफोर द रिसेस। रिसेस का मतलब होता है ब्रेक। अब ये लंच ब्रेक भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा ब्रेक जो 2 पीरियड के बीच में थोड़ा सा ब्रेक रहता है जहां पे बच्चे आपस में खेलते हैं या मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसे रिसेस कहते हैं। यू हैड अ पीरियड ऑफ इंग्लिश जस्ट बिफोर द रिसेस। तो वो कहती है कि तुम्हारा इंग्लिश का पीरियड था, इसीलिए तुम
कुछ इंग्लिश में बताने वाले हो। तो अजय कहता है यस इट इज समथिंग अबाउट नेम्स। हाँ, ये नाम के बारे में है। नीला फिर अपने बाकी दोस्तों को बुलाती है, नफीस, नेहा, ऑल ऑफ यू कम हियर प्लीज। और अजय हमें नाम के बारे में बताने वाले हैं। फिर अजय लीला से कहता है व्हाट्स द नेम ऑफ योर यंगर ब्रदर? आपके भाई का नाम क्या है? तो लीला कहती है रोहित। पर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वाई आर यू आस्किंग दिस? अजय कहता है इट इज बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट नेम्स। मैं आपको कुछ नाम के बारे में बताना चाहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। लीला व्हाट्स दैट? वो क्या है? तो अजय बोलता है योर ब्रदर्स नेम इज रोहित इजंट इट? आपके भाई का नाम रोहित है ना? तो लीला कहती है हाँ, यही है। अजय नाउ लिसन केयरफुली। रोहित इज अ नेम एंड अ नेम इज अ नाउन। अब ध्यान से सुनो। रोहित एक नाम है और नाम ही नाउन है। नाम को अगर हम हिंदी में समझे तो नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाउन का मतलब भी संज्ञा ही होता है। तो वो कहता है कि रोहित एक नाम है और नाम ही नाउन है। लीला you mean to say that the name of any person such as Gopal, John and Bhavna can be termed as noun? तो फिर लीला को समझ में आता है, वो कहती है तुम्हारा मतलब है कि किसी भी इंसान का नाम जैसे कि गोपाल, जॉन, भावना ये सब नाउन है। तो अजय कहता है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। तो नफीस कहता है अजय कैन द नेम ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस बी टर्म्ड एज नाउन्स? क्या जगह के और चीजों के नाम को भी हम नाउन कहेंगे? तो अजय कहता है यस। नेहा पूछती है व्हाट अबाउट नेम्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल, बसेस, कार्स, ट्रेन्स, स्टार्स, द सन एंड द मून? तो वो पूछती है जानवर हैं और पक्षी हैं और बस और कार और ट्रेन और सितारे और जो सन है, सूरज और जो चांद है, इन सब के नाम भी क्या नाउन होते हैं? तो अजय कहता है हाँ, जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं जिसको इंसानों ने अपने पहचान के लिए जिस भी नाम से बुलाते हैं वो सब नाउन है। ऑल द थिंग्स अराउंड अस विच आर नेम्ड बाय मैन फॉर देयर रिकॉग्निशन आर नाउन्स। फिर सारे फ्रेंड्स मिलके बोलते हैं इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ये सच में बहुत ही ज्यादा रोचक है। अजय प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। प्लीज मुझे कुछ नाउन के उदाहरण दीजिए, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए। लीला तुम शुरू करो। लीला यू बिगिन विथ नेम्स ऑफ पर्सन्स। लीला कहती है मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम, सुरेश आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, दे आर प्रॉपर नाउन। लीला कहती है कि नाम बताती है मोहन, सलीम ये सब नाम है, लोगों के नाम है और ये प्रॉपर नाउन है। नाउन दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिससे हमको एकदम पहचानते हैं कि हाँ यही पर्सन, जैसे मोहन है, ये सलीम है, ये प्रॉपर नाउन होंगे क्योंकि वो एक खास व्यक्ति का नाम है। जो बहुत ही स्पेसिफिक होता है वो प्रॉपर नाउन होता है और जो कॉमन होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब अजय पूछता है नेहा से यस नेहा गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्लेसेस। तो नेहा कहती है भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली एंड मुंबई आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, दे टू आर प्रॉपर नाउन। ये जो जगह के नाम है ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं। अजय अब नफीस से पूछता है नफीस गिव सम एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स प्लीज। तो नफीस बोलता है ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन एंड पेंसिल आर नेम्स ऑफ थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन है। देखिए ट्रेन, अब ट्रेन कहें तो हम किसी एक ट्रेन का नहीं पता चल रहा कि कौन सी ट्रेन, ये जनरल है, सभी ट्रेन, सभी बस, सभी टेबल, सभी चेयर सब आ जाएंगे उसमें। तो वो हर तरह के चेयर, हर तरह के पेन पेंसिल सब उसमें आ जाएंगे, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। अजय
टॉम से पूछता है, टॉम गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स प्लीज। तो टॉम भी कुछ पक्षियों के नाम बोलता है, पैरेट, स्पैरो, क्रो, कुकू, पीकॉक, काउ, गोट, sheep, elephant and tiger etc. are all the names of birds and animals. They too are common nouns. अब यहाँ पे भी किसी एक पैरेट मतलब पूरे सारे तोते, सभी तोते की प्रजाति, और स्पैरो, क्रो, तो ये सब भी कॉमन नाउन है। फिर अजय पूछता है, वेल फ्रेंड्स, यू ऑल हैव गिवन गुड एग्जाम्पल्स, नाउ लेट्स डिफाइन अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो अजय बोलते हैं, हाँ अब आप सब लोगों ने बहुत अच्छे सही एग्जाम्पल्स दिए हैं, अपने दोस्तों से कहता है। अब हम सेंटेंस में हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कहते हैं ना व्याख्या कीजिए, तो नाउन को अब आप सेंटेंस में बताइए कि नाउन क्या है। लीला बोलती है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक शब्द है जिससे नाम पता चलता है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नफीस, अ नेम इज अ नाउन, एक नाम ही नाउन है। नेहा बोलती है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। जितने भी सब नाम वाले शब्द हैं सब नाउन्स हैं। तभी वहां से अजय's टीचर मिस्टर सिंह हैपन्स टू पास बाय, ही स्टॉप्स देयर। वहां से मिस्टर सिंह गुजर रहे थे और वो वहां रुक जाते हैं जहां पे ये सारे बच्चे खड़े रहते हैं। मिस्टर सिंह पूछते हैं, वेल चिल्ड्रन, व्हाट आर यू डूइंग? आप सब क्या कर रहे हो? तो अजय बोलता है कि सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन्स, हम लोग नाउन्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लीला बोलती है, अजय ने हमें बताया कि नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। नफीस पूछता है, इज इट करेक्ट सर, क्या ये सही है? तो मिस्टर सिंह कहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, कैरी इट ऑन। तो फिर मिस्टर सिंह कहते हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैरी इट ऑन, कैरी इट ऑन मतलब आप जो कर रहे हैं उसको जारी रखिए। लीला, नफीस, नेहा एंड फ्रेंड्स सभी मिलके बोलते हैं, थैंक यू अजय, वी हैव एंजॉयड द डिस्कशन। हमें इस चर्चा में बहुत मजा आया। इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ये सही में बहुत ही ज्यादा रोचक था, इंटरेस्टिंग था। ऑल फ्रेंड्स लीव टू देयर क्लासेस। फिर उसके बाद सारे जो मित्र थे वो सब अपने क्लासेस में चले गए। तो देखिए आपको मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में, और आपको देखिए पता भी चल गया होगा कि नाउन क्या होता है। तो ग्रामर इतना भी कठिन नहीं होता है सीखना, कई बार हम खेल खेल में ज्यादा आसानी से सीख लेते हैं। तो चलिए आप इसको रीड करिए खुद से और आपको फिर और भी समझ में आएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2, जिसमें हम इसका एक्सरसाइज और भी कॉन्वर्सेशन भी है एक्सरसाइजेस में, और पैसेज उसको हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।